VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب شجر سایہ ہے جو ادارہ تحقیقات اسلامی جامعہ دارالسلام امارات کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے مضامین ہیں جو مولانا کاکا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب پڑھنے لائق ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ مولانا کی شخصیت کیا تھی اور انہوں نے ملک و ملت کے لیے غریب یتیم بے کس بچوں کے لیے کیا کیا ہے اور ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسے تھا۔ جب وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے، اور جب وہ سفر پر غیر ممالک میں جاتے تھے تو وہاں جانے پہچانوں کے ساتھ وہ کس طرح برتاؤ کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں اس دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، شجر سایہ دار میں ایک مضمون ہے۔ یہ مضمون مولانا محبوب بادشاہ محل عمری دامت برکاتہم سے لکھی گئی ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ کچھ لوگ حرکت و عمل کا پیکر اور عزم حوصلے کی مضبوط چٹان ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر دوسروں کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ محترم سیکریٹری صاحب کی شخصیت ایسی ہی باکمال تھی۔ 11 مئی 2024 کی دوپہر 2:30 بجے جب آپ کی وفات کی اطلاع ملی تو دل نے کہا کہ آج ایک ایسے عالم دین کی وفات ہوئی ہے جو روح پرور شخصیت کے مالک تھے۔ دوسرے دن نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگوں کو دیکھ کر یہ شعر یاد آ گیا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کسی بڑے آدمی کی رحلت پر عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات سے ایسا خلا پیدا ہو گیا جس کا پر کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کی شخصیت فی الواقع ایسی ہی تھی کہ آپ کا بدل ملنا مشکل ہے۔ محترم سیکریٹری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ جہاں بڑی صفت انسان تھے وہیں ان میں غضب کی خود اعتمادی اور قوت ارادی تھی۔ وہ ایسے مرد مجاہد تھے جو ناسازگار حالات میں بھی اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے عزم و ہمت کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ اکبر الہ آبادی کی یہ 2 شعر ایک لفظی تصرف کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسب حال معمول ہوتے ہیں۔ ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سعید کام کرتا تھا، نہ بھولو
फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। कहा जो चाहे कोई, मैं तो कहता हूँ कि आयत पर खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थीं मरने वाले में। मादर इल्मी जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के लिए आपने जो मेहनत और दौड़ धूप की, उसका तसव्वुर करना हर एक के लिए मुश्किल है। अक्टूबर 1994 की बात है कि आप जामिया के काम से सऊदी अरब तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ के मशहूर शहर अल जुल्फ़ी भी पहुँचे थे, जहाँ मेरे मुखलिस दोस्त मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी कन्नौलवी मकतबतुल हरमैन में बरसरे खिदमत थे और मैं भी वहीं था। सेक्रेटरी साहब का क़याम फंदुक़ फालिज में था। हमारी ख्वाहिश थी कि जब तक आप हमारे पास रहें, खिदमत का मौका मिलता रहे। इस ख्याल से हम खुद कमरे में खाना तैयार करके होटल ले जाते थे, मगर सेक्रेटरी साहब हमेशा मना करते और फरमाते कि भाई आप लोग तकल्लुफ़ न करो, मैं होटल में खा लूँगा। 2 दिन बाद जब वहाँ से जाने लगे तो हमने चुपके से होटल का किराया अदा कर दिया। जब ये बात आपके इल्म में आई तो आप नाराज़ हो गए और ये कहकर रकम अदा कर दी कि आप लोग घर बार छोड़कर यहाँ हुसूल माश के लिए आए हैं, आपको ऐसी दरिया दिली से परहेज़ करनी चाहिए। ये जुमला मैं फिर से पढ़ता हूँ। ये जुमला मौलाना काका सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। आप लोग घर बार छोड़कर यहाँ हुसूल माश के लिए आए हैं, आपको ऐसी दरिया दिली से परहेज़ करनी चाहिए। तीसरे दिन सेक्रेटरी साहब को कसीम जाना था और इस सफ़र में मुझे साथ रहने की सआदत हासिल हुई। मैं देखकर हैरान रह गया कि इस असफार में ना आपको खाने पीने की फ़िक्र होती थी और ना आराम का ख्याल। जब काम ख़त्म हो जाता तब जाकर भूख प्यास मिटाने की तरफ तवज्जो देते थे। कसीम से फारिग होकर आपका प्रोग्राम रियाज जाने का था और आपने सरकारी बस के ज़रिए सफ़र करने का इरादा कर लिया। जब मैंने आपको बस स्टैंड पहुंचाया तो इसरार के साथ कहने लगी कि अब आप चले जाओ, बस आएगी तो मैं सवार हो जाऊंगा। मगर मैं बस आने तक आपके साथ ही रहा। इस दौरान महसूस किया कि आपको अपने से ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी। यही बात मैंने जुल्फ़ी क़याम के दौरान भी महसूस की। मैंने बारहा गुजारिश की कि खिदमत का मौका दें, मगर आप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती थी और जब आगे बढ़कर हम कुछ खिदमत करना चाहते तो रोक देते थे। हालांकि दिन भर की दौड़ धूप से बहुत थक गए होती थी। आपकी यह हालत देखकर मुझे दिल में ख्याल आता था कि आपको इतनी तकलीफ़ें उठाने की ज़रूरत क्या है। औरों की तरह घर पर ही सुकून से रह जाते, मगर बात मादरे इल्म के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की की थी। इस ज़िम्मेदारी का हक़ घर पर बैठे रहने से कहाँ अदा होता। माशाअल्लाह, क्या बात है। इस किताब को ज़रूर पढ़िए और इसमें दिए गए तमाम मज़ामीन को पढ़ें ताकि हमें मालूम हो सके कि मौलाना काका सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह किस नौयत के फरिश्ता सिफत इंसान थे। 1995 की बात है। मैं तातील में वतन लौट आया
तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मोहतरम सेक्रेटरी साहब और असातिज़ कराम मेरे निकाह में शरीक हों। चूँकि शादी 17 शाबान 1415 हिजरी मुताबिक 19 जनवरी 1995 को थी और उस वक्त जामिया में सालाना तातील थी, इसलिए इस ख्वाहिश के बराने की उम्मीद थी। मैंने उमराबाद पहुँचकर आपके अलावा असातिज़े कराम को भी दावत दी कि आप बहुत खुश हो गए और मेरे इसरार पर शिरकत का वादा भी फरमाया। मेरी खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था जब महफिल अक़द में मोहतरम सेक्रेटरी साहब के अलावा मौलाना सैयद अब्दुल कबीर उमरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी उमरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हाफिज़ सैयद शब्बीर अहमद उमरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अतहर हुसैन उमरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल वाजिद उमरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना असलम शाद उमरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सैयद उमैर अहमद साहब उमरी जैसी शख्सियात तशरीफ़ फरमा थी। निकाह मस्जिद कौसर वेलर ज़िला चित्तूर में हुआ। खुतबा निकाह शेख तफसीर रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया और खिताब मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी उमरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअस्सर खिताब फरमाया। मेरी इस खुश वक्ती पर सबको हैरान थी, मगर मेरा दिल उस वक्त भर आया जब मालूम हुआ कि उस अनहोनी को होनी में तब्दील करने की कोशिश मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने फरमाई और अपनी कार के अलावा एक और कार का इंतज़ाम करके असातिज़ा की शिरकत को यकीनी बनाया। वो सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियाँ हैं, वो सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियाँ हैं, अब देखने को जिनकी आँखें तरसियाँ हैं। ज़ाहिर वो बातिन की पाकीज़गी आपकी बड़ी खूबी थी। रस्म हो या बस्म, पाक दिल व पाक बास, बकौल इक़बाल तेरा जलाल व जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलील व जमील, तू भी जलील व जमील, खाकी व नूरी निहार बंदय मौला सिफ़ात, हर दो जहाँ से गनी उसका दिल बेनियाज, उसकी उम्मीदें खलील, उसके मकासिद जलील, उसकी आदात दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज। आप खिदमत खल्क़ का बड़ा जज्बा रखते थे, अपने पुराने सबके खैरख़्वाह थे और सबका तावन करते थे। खुद गर्जी के इस दौर में ऐसे मुखलिस और खुदा तरस लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। मौलाना मोहतरम इत्तेहाद मिल्लत और गैर मुस्लिमों में दावत दीन के अलम बरदार आलिम दीन थे। दीन मिल्लत की सरबुलंदी और नेकनामी के लिए आप इत्तेहाद उम्मत को ज़रूरी समझते थे और चाहते थे कि उलमाए कराम मुसलमानों को जोड़ने वाले हों, तोड़ने और तफ़रीक़ा पैदा करने वाले न हों। आप इंतशार उम्मत का सबब बनने वाले हर काम से खुद भी दूर रहते और दूसरों को भी दूर रखने की कोशिश करते थे। जहाँ भी आपको खिताब करने का मौका मिलता उसी की दावत देते थे। इसके साथ साथ गैर मुस्लिमों में दावत दीन के लिए आपकी फ़िक्रमंदी और दिलसोज़ी भी लायक सताइश थी। फ़र्ज़ मनसबी के हवाले के अलावा मुल्की सूरत हाल के पस मंज़र में भी दावत दीन की अहमियत व ज़रूरत पर दर्दमंदी से रोशनी
डालते और ख़ुसूसन उलमाए किराम को इस तरफ तवज्जो दिलाती थी। इस वक्त हिंदुस्तान में और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत व अदावत की जो फ़िज़ा आम हो रही है, उसका बड़ा सबब आप हिंदू मुस्लिम ताल्लुक़ात की कमी और दावत दीन से गफलत बताती थी। आपका ख़्याल था कि जब तक ये दूरियां ख़त्म न हों उस वक्त तक दोनों में आपस की गलत फहमियाँ दूर नहीं हो सकती और ना नफ़रतों का ख़ात्मा हो सकता है। मोहतरम सेक्रेटरी साहब की शफ़क़त और दुआएं मुझे हमेशा हासिल रही। मदनपल्ली के अतराफ़ में आना होता तो ज़रूर मतलब फरमाती। मेरी ख्वाहिश पर आप और मौलाना हफीज़ुर रहमान आज़मी उम्र रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द मौलाना मोहम्मद रफ़ी कुलोरी उम्र के साथ 2 मरतबे मेरे घर पर कदम लंजा फरमा कर मसरत का मौका बख्शा। आपकी वफ़ात पर दर्द व गम का असर दिल पर आज भी बाकी है, मगर जब भी ये आयत पढ़ता हूँ मरहम का काम देती है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल-बक़रा 155 था 157। और हम ज़रूर खौफ ख़तर, फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायात होंगी, उनकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्तरू हैं। मैं इस मुख्तसर मज़मून का इख्तिताम मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी उमरी रहमतुल्लाह अलैह की इन अशार पर करता हूँ। वक्त के साथ ये तो हर एक गम हो ही जाता है रफ्ता रफ्ता कम। वक्त के साथ यूँ तो हर एक गम हो ही जाता है रफ्ता रफ्ता कम, लेकिन ऐसे भी गम हैं कुछ ज़ाहिद वक्त जिन पर न रख सका मरहम। अल्लाह ताला सेक्रेटरी साहब की मग़फ़िरत फरमाए और आपको बाग़ रिज़वान में आला मकाम बख्शे। आसमां उनकी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नूर रस्ता उस घर की निगहबानी करे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।